According to the third National Family Health Survey done in 2005-06 in Jharkhand, about half, that is 47.2% of the children under 3 years are stunted or too short against their age, which is an indication of undernourishment. One third, that is 35.8% children are wasted or too thin for their height, which may result from inadequate recent food intake or a recent illness, and about 54.6% are underweight, which takes into account both chronic and acute undernutrition. Moreover, as many as 70% of women of 15 to 49 years and about 67% of adolescent girls of 15 to 19 years are anemic in the state. We were travelling through the villages under Sonarai Thadi and Devipur blocks of Deoghar district in Jharkhand. So this Fight Hunger First initiative that we started is on accessing the rights and entitlements of the community, and it's also focusing the health of mothers, child, these things. So the idea is that we are trying to improve the access of the community so that their food security can be enhanced. We found that the community is not aware about the services. तो सरकार से मदद के लिए कुछ किए हैं इसके लिए? कुछ नहीं। आपको पता है कि सरकार क्या देती है? कुछ नहीं देती है, चावल खाली कंट्रोल वाला चावल दी से और क्या देता। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि टीकाकरण से बीमारी बढ़ता है या घटता है या कम होता है। हम लोग सुई नहीं लेंगे, बोल बीमार होता है, बुखार लगता है, घाव हो जाता है, इसलिए हम लोग नहीं लेंगे। So we try to inform them. We did lot of activities for this awareness. यहाँ से होता है भैया अनार, इसको खाने से नहीं पड़ता है कोई बीमार। जहीं भी देखो हाट बाजार, वहाँ से ले आओ 2-4 अनार, छोड़ो हाट और बाजार। टीकाकरण नहीं कराया गया, तो बच्चे को जो टीकाकरण होता है What are the things they should eat? What are the practices they should do during the pregnancy or before pregnancy or after pregnancy things? What are the child care practices? We also develop lot of IECs based on this infant care practices things. So we have, through these IEC materials, through our own capacity, we started to discuss and dialoguing things with the community. कुछ छोटा-छोटा पेपर दिख रहा है, एक कटिंग किया हुआ, जो कटा हुआ एक बोर्ड जैसा है। अब कितने ऐसे महिलाएं हैं गांव में जो स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जो भी सुविधा मिल रही है, सरकार की तरफ से जो भी सुविधा मिलती है, जो स्वास्थ्य केंद्र से सुविधा मिलती है, वो ले पाती हैं। वो एक कदम आगे बढ़ाइए। When you also started to do some live demonstration with the field, like food demonstration, how to cook the food. इसके बाद यहाँ पे जब हम लोग यहीं पे पीढ़ी हट के थे, तो यहाँ पे सबको बुलाया, सब रोज 15 दिन तक उनके गार्जियन को भी कहा गया, उसकी माँ को, बच्चे की माँ को, कि आप लोगों को भी आना है। हम लोग यहाँ जो भी खाना बनवाते थे सबके सामने में, हम लोग का मेन मकसद था उन लोग को सिखाना, क्योंकि 15 दिन में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन हम लोग का था कि वो लोग अपने घर में करें। एक चीज़ नहीं खिलाया है, सब चीज़ खिलाया है। 15 दिन में उसका शरीर बदला हो गया। पहले वजन कम था, बाद में वजन बढ़ा गया। संतुलित आहार मतलब तिरंगा भोजन, 3 रंग का भोजन बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। उससे क्या होता है, हमारा जीवन स्वस्थ और अच्छा रहता है, हमारे बच्चों के लिए भी। We did interventions on improving the nutritional aspect of the mothers, children's. So we did lot of nutrition camps. का गोली लेना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए, गंदे भी आ सकते हैं। और जो अति कुपोषित बच्चा था, उसको हम लोग का प्लान है कि वो उसको MTC रेफर करे, और उसके घर में टोटल जितना भी कुपोषित बच्चा है, अति कुपोषित बच्चा, उसके यहाँ हम लोग किचन गार्डन लगाया है और सर्कल गार्डन लगाया है। Bhivani is only 19 months old.
She is a moderately acute malnourished child. She is congenitally blind in one eye and is suffering from blister attacks all over her body. Her mother was motivated to grow this small nutrition garden. बच्चा बहुत कमज़ोर थी, वही साग सब्जी खाने से मतलब कुछ ताकत बढ़ गई, बच्चा स्वस्थ. And we also did kind of training capacity building programs for ICDS workers, for these health workers. For the ICDS workers, they don't know how to measure the height, how to measure the weight of the children. They don't know how to plot whether the child is in the green or red or in the yellow zone. So these are the things that we have tried to train them also. गर्भवती जिस समय थे उस समय हमको पता नहीं था जो आंगनबाड़ी जाने होगा. संस्था ने बोली कि आंगनबाड़ी जाना है. वहाँ पर आए तो उसका बाद हमको पता चला कि गर्भवती रहने से सब कुछ हरा हरा सब्जी खाना है और सब कुछ दवाई सुइया लेना है. टीकाकरण पूरे महीने महीने लेना है. डॉक्टर के पास जाना है. यही सब समझने के लिए आए हैं. हम लोग का इतना कम काहे देते हैं? हम तो मास्टर से खुद झगड़ा करते हैं. We also started doing things with the school teachers, you know, and the school management committee, that what are the foods they should cook in the school that can increase the nutrition things and help the children also to get their better health. We have struggled a lot to establish this concept. It was a school garden thing. So this has helped to improve the midday meal quality in the school also. Hand washing and other hygienic practices were introduced through the Anganwadi centers and the schools. 1, 2, 3 ये नाखून So wherever we are working, our intervention is that first we build the institution within the community. So this association were our platform. Through this association we started to do kind of, you know, capacity building things of the community. So these are the activities which has helped the community to understand what are the actual entitlements and where they should go and how to access these things. We try to collaborate with the department. We try to, when we understand they also need our help, and they are also trying to improve their services. जैसा आपको बताया कि अभिनेत्री यहाँ पर 3 पंचायत में काम कर रही है, दरगा, कट्टियों और बारवा में, जहाँ हम फाइट हंगर फर्स्ट इनिशिएटिव इस कार्यक्रम को बोलते हैं, यानी भोजन पोषण सुरक्षा अभियान. So this Fight Hunger First initiative has helped to improve this bridge, and now the community is much aware. If we compare from past 3 years, the community is much aware about their own entitlements. So the woman knows if their child is in the red zone, she must send her child immediately to the MTC. If her child is in the yellow, she knows how to make the Nutrimix, how to prepare her own local food, and which can increase the nutrition things of her child. She is also practicing hand wash things, use of soap, this sanitation ideas. Fight Hunger First initiative ensured people's access to their rights and entitlements, and also proper utilization of food available to them to achieve nutritional security, with special emphasis on women and children. Sustainable Integrated Farming System, a complementary project of FHFI, helped in increasing availability of food and purchasing power of the people. पहले धान होता नहीं, उसका गुड़ा चूर को पहले खाया पहले हम लोग धान गुला के उसको गुड़ा बना के खाते हैं पहले. और अभी को मने भात या चावल नहीं खाते हैं कोई भी. हमारा पानी नहीं है, कैसे गुजर जाएगा? हमारा ज़मीन तो ठीक है, ऐसे पानी का साधन नहीं है, उपजा कैसे होगा? खेती बाड़ी है क्योंकि सर पानी नहीं पड़ता तो क्या करेंगे? 2-3 साल खेत नहीं हो रहा. आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? तीसरा.
तीसरा में। ये जो लड़की जो है रूबी, ये आपको क्या लगता है? पोती, लड़का का लड़की। तो आपका लड़का क्या काम करते हैं? होंगे, मुझसे नहीं बोल पाता, ये मजदूरी में काम करता है कुआं में। Ruby was only 9 when we met her in Goslidi village. Her father is a wage laborer who cannot speak. They have only half an acre of land. Due to water stress, possibility of doing agriculture is minimum. Her elder brother Vijay was only 15 when he had to drop out from school and go to Kolkata for working as a wage laborer in construction sites. खटने से तो खटेगा तब तो खाना पाएगा, नहीं खटने से तो खाना नहीं मिल सकता है। This is one of the blocks where we have comparatively better forest reserves, and people here rely on natural resources for their living. But at the same time, this is a water stress zone, and people had livelihood stress. The soil erosion in this area that was very high, and the major crop, it was monocrop in nature, and the food security at best for the people was 6 to 8 months of period. यहाँ पानी का सुविधा नहीं है, कुआं कुछ नहीं है। पानी रहता तो खेती होता, खेती नहीं होने से हम लोग क्या खाएंगे? We started to analyze what can be done to explore the possibilities, the technological interventions, and also the improvement in practices building upon the traditional knowledge. Now it has come into the practice that every household has at least 2 to 3 biodigesters at home. पहले तो 1 बीघा में करीब हम 60 या 70 किलो ऐसे करीब हम खाद डालते थे, और आज बर्मी खाद बनाने के बाद हम देखते हैं कि उसमें हमको माने 75 तो घट गया है, 25 बाकी है, अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन कोशिश रखे हैं। उपज उतना ही हो रहा है, उससे हमको लगता है कि ज़्यादा हो जाता है, काहे कि साल भर हमको नहीं कुलता था, और अभी देखते हैं कि साल भर खा पी करके बाजार में भी ले आकर के बेचते हैं। खर्चा इसमें क्या, अपना घर में है, अपना गाय गोरू है, भैंस है, इससे मैंने बनाते हैं, बर्मी खाद बन जाते हैं, इसमें तो खर्चे है नहीं। जब गाय गोरू है घर में तो इसमें क्या होगा सर, मैंने बना लेते हैं, अपना घर से खर्चे थोड़ा मेहनत करिएगा हो जाते हैं। और DAP यूरिया में तो पैसा लगता है, बाजार से खरीद कर लाना होता है। इसमें 2-3 years back there was vast tract of fallows. Now fallows are no more fallows. आगे में एक तालाब है खिजुरिया गांव में, वहाँ से ये जोरिया फूटी हुई है। इस जोरिया में ये जो चेक डैम बनाया गया है, ये नाबार्ड के जल छाजन परियोजना के द्वारा बनाया गया है। गांव के लोगों ने आगे जा कर के एक हम लोग गड्ढा करके पानी स्टोर किए हैं, और वहाँ से पानी को लिफ्ट करके लगभग 1800 फीट लिफ्ट करके पूरे गांव में पानी को फैलाए हैं। पानी पर्याप्त मात्रा में हो गया तो हम लोग इस साल गेहूं लगाए, सरसों लगाए, आलू लगाए, चना लगाए, तरह तरह का सब्जी लगाए, जो कि आज से 5 साल पहले हम लोग सोचे नहीं थे, आँख से जो सब्जी देखे नहीं थे, कभी खाए नहीं थे, उस सब्जी को आज हम लोग खाते ही सिर्फ नहीं है, बाजार ले जाकर बेचते भी हैं। Residual moisture has been extensively used for growing cover crops. Within the farms, almost everything was in place, but they were not integrated. The understanding of integration, the adoption of practices, has led to promote low external input based agriculture in this area. We have observed, the data also suggests that there has been 30 to 35% savings in input cost of farming. मेरा नाम हुआ वासुदेव सिंह। यहाँ डोभा था, पहले से वैसे पड़ल था, उसे जब डोभा खाना है तो इसमें मछली पालन किए, अभी कर रहे हैं, और बतख भी इसमें पालते हैं। जो इसका लाही जो गिरेगा सो डोभा में गिरेगा, वो मछली खाएगा, बिना पूंजी का वो अधरा हो गया। और यहाँ हम ये खेती करते हैं, 6 काम करते हैं इसमें, जो कंपोस्ट भी बनाते हैं, खेती करते हैं,
और गाछ भी पेड़ पौधा में हम लोग लाह भी बनाते हैं। एक बोरा DAP खाद लेने जाते थे तो 2800-3000 रुपया देते थे। और ये तो कुछ नहीं, घास पला से बनाते हैं, गोबर से बनाते हैं, इसमें कुछ खर्चा नहीं पड़ता। Over the period, the food production from fallows alone has increased household availability of food grains, pulses, vegetables for extended 2 to 3 months period. और नंदलाल जी का ये ज़मीन मैंने जब देखा, इससे पूरा ज़मीन का जब सर्वे किए तो ऊपरी लैंड में ये आता था, और ऊपरी लैंड का जब हमने सर्वे किया और इसके साथ जब मैंने बातचीत किया कि इसमें भी खेती किया जा सकता है, तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम बोला भाई इसमें कौन सा खेती हम ऐसा करेंगे, ये तो सब दिन देखते हैं पड़ा रहता है, बाप दादा से देखते हैं इसी तरह रहता है। तब इसको हमने समझाया कि इसमें भी खेती अच्छी से होगा और अच्छा आपको मुनाफा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा तकनीक को बदलना होगा। फिर इससे हमने कंपोस्ट का इसको ट्रेनिंग दी, कंपोस्ट फीड का, फिर बर्मी कंपोस्ट का हमने ट्रेनिंग दिया इसको। कंपोस्ट बनवाए, बर्मी कंपोस्ट बनवाए, ज़मीन को जुतवाए, उसमें इसको छिड़काव करवाए, फिर ज़मीन कुछ हल्का हुआ और फर्स्ट में इसका खेती 2012 में शुरू हुआ इस ज़मीन पर। जैसे ये पूरे 2 एकड़ का फील्ड है, इसमें 2 एकड़ में अरहर और मकई का हमने लाइन स्विंग करवाया। तो मकई तो उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन अरहर हुआ तो खूब जोर जबरदस्त हुआ। अरहर काटे तो उसको ये उसका दाना निकाले सर, तो उसको हम बेच करके, मेरा ज़मीन कुछ बंधक था तो उस ज़मीन को हमने छोड़ाई, और इसके बाद उसका अरहर का जो डंठल था उससे फिर हम अपना घर का पास घरबाड़ी है उसको घेराव की, और उसमें और सारी सब्जी का खेती हमने करना शुरू किया। तो हम देख रहे हैं कि आज हमको माने अच्छा इसमें मुनाफा हमको मिल रहा है। इस खेती के बाद इससे हमने गर्मा खेती भी करवाई, लगातार बर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट पीट बनवाते रहे और ज़मीन में डलवाते रहे। अभी भी इनके घर में कंपोस्ट पीट का 2 तैयार है पीट, और एक बर्मी कंपोस्ट अभी रेडी हुआ है, और अभी फिर इसका मैंने तैयारी चल रहा है। हम साग सब्जी का मैंने खेती, बैंगन, मिर्चाई, टमाटर के लिए नर्सरी में गाछी तैयार है, और 6-7 रोज में वो भी लाइन स्विंग के साथ इसको गेंदा फूल के साथ उसको क्रॉप कराने का हम प्लान किया है। Adoption of system rice intensification method has increased production and thereby availability of food and cash income. और उसमें वर्षा ज़्यादा होने के बाद वो धान में धान खेती होते थे, और इसमें जो है सर अभी सर कम भी वर्षा होते हैं फिर भी धान देखिए अभी इसमें बीज जो है सर जितना हम लगाए हैं कम से कम 40 केजी बीज लगता था, और उसमें 1 किलो बीज में हम जो है सर पूरे लगाए हैं। Within 1 to 2 hours of a rainfall, the water percolates down very fast. So in this area, the keyhole garden approach, this has been a good success, and I think this has very good potential to be replicated in most of the arid regions. पहले हम लोग किचन गार्डन नहीं लगाते थे, वो हम लोग बाजार से लाते थे सब्जी खरीद के, और 2-3 दिन तक सब्जी ताज़ा सब्जी चलता था, उसके बाद ख़त्म हो जाता था। अब हम लोग अपने किचन गार्डन लगाते हैं और बच्चा सबको खिलाते हैं ताज़ा सब्जी। The SIPS has established that women can be or are better farmer than the male, because they are the natural caretakers of the environment, ecology and home also. पहले हम लोग सब्जी खेती का नहीं करते थे, और उसका वाला इन साल से सब्जी लगाना शुरू किए। इससे हमको यही फ़ायदा हो रहा है कि जो ऊपर में भी 5-6 चीज़ का सब्जी ले रहे हैं, और नीचे में भी झींगा बैंगन लगाए हैं, मिर्चाई लगाए हैं, गोभी लगाए हैं, टमाटर भी लगाए हैं। ये नीचे में 4-5 चीज़ का फसल ले रहे हैं, और ऊपर में भी 3-4 चीज़ का सब्जी का फसल ले रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या है, जो कुछ घर में खाते हैं और जो ज़्यादा हो जाते हैं उसको बाज़ार भी बेचते हैं। अगला साल ये दवा तैयारी किए
तो इससे फ़ायदा यही हो रहे हैं कि जो मछली भी इससे डोभा से ले रहे हैं, बतख भी जो है सो उससे डिमा भी तैयारी हो रहे हैं, और पानी भी जो पटवन में भर जाते हैं तो पटवन भी सिंचाई भी करते हैं, और सब्जी उब्जी जो लगाए हैं सो सब्जी उब्जी इससे फ़ायदा हो रहे हैं। इसमें करेला है, झींगा है, कद्दू है, कोहड़ा है, नेनुआ है, मिर्चा है, बैंगन है, गोभी है, सोयाबीन है, गंधारी है, लाल गंधारी है, हरा गंधारी है, मेथी है, बीन्स है, खीरा है। Earlier, every household at best had 3 to 4 kinds of vegetables at home. This has grown to more than 12-13, and at a minimum 8 to 9 kinds of vegetables and other crops can be found in the farms. For the communities where poultry was a taboo, duck farming has been also introduced and widely adopted by particularly the Ghatwal community, who usually do not rear poultry birds. So that also provided a source of nutrition by eggs, duck meat, and cash income also. छाया में कोई उपजा नहीं होता है। अब 2 साल से हम लोग लगा रहे हैं तो हल्दी पूरा उपजा होता है, ओल भी उपजा होता है छाया में, और पूरा भी उपजा होता है। Sunflower emerged as a popular crop for the upland. Millets that had been once very staple, now the farmers are trying to put them back. Farmers learned to make use of cow urine as a pest repellent, seed fortifier, and growth enhancer. Installation of rainwater harvesting unit and drip irrigation system could address the water scarcity to a large extent. तो ये तालाब जब कि बन गया तो इसमें अभी मछली देखने का तो शौक बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जबकि धान मरेगा अभी तो कोई उपाय नहीं था। लेकिन यह तालाब होने के कारण हमारा जम कि संसारे बच जाएगा, हमारा गांव बच गया, हमारा संसार है गाँव है भाई। और 20-25 एकड़ मेरा ज़मीन जो है सो खुले पानी में अभी मैंने पाटवन हो रहा है। उसका बाद हमारा गेहूँ भी लगेगा, सरसों भी लगेगा, ऐसा ही पानी मेरा 10 फीट अभी पोखरा में है। ये सब्जी सब लगा लो छी, मिर्चा, बैंगन, कद्दू, झींगा, हरा सब छ। हाँ ये हरा खाना लग मछली छ, लेकिन मछली हम लोग मैंने मरालो काल खाना तक 1-1.5 किलो करे हिसाब हलो सभी। Few years back, access to market was difficult for the people in this area. There was at best 2 to 3 local haats in a week, and people have to wait for 2 to 3 days, and they had to travel 5 kilometers, 10 kilometers and 12 kilometers distance to get buy their commodities and sell whatever little they had. And also, since it was not nearby, it was difficult to carry back, so it was almost sold on throwaway prices there. With SIF's intervention, a local market, a village hart, has been established in Goslidi village, and almost 35 shops are running out there. जीरो एनर्जी से हम लोग बाड़ी का जितना सब्जी है हम लोग बाज़ार लेते हैं, बाज़ार में हम लोग बेचते हैं, जो बच जाती है वो हम लोग यहाँ पर जीरो एनर्जी में हम लोग रखते हैं। एक सप्ताह हम लोग का तेजा रहता है,
तेजा रहने से उसको वजन नहीं घटता है, वो खराब नहीं होता और दूसरा बाज़ार में हम लोग बेच सकते हैं। ये टीना से हम लोगों को बहुत फायदा है। एक तो समय का बचत हुआ, उसके बाद जलावन भी कम लगा, धान चावल में कंकर नहीं रहा, जाली जो है उसमें जाली में छना जाता है, उसके बाद चावल टूटता नहीं है। बहुत इससे हम लोगों का फायदा हो रहा है। समय का बचत तो बहुत है, एक बार 1 क्विंटल इसमें उबाल लेते हैं। Rice steaming, paddy steaming unit that has so far saved about 2.5 tons of rice that was otherwise waste as broken rice. The Common Facility Center established at 2 locations in this area under SIP's intervention has helped them to develop value chain of turmeric powder, coriander powder, and sal leaf plates, mustard oil, and sattu. So these have been some products that have been taken through the SHGs in a cooperative mode. Wow. तो ये जो धान आपने लाया, ये कहाँ से लाया? घर से। आपका भाई कहाँ गया? घर में मैं। घर में है? जी सर। वो तो कलकत्ता में जा रहे थे। नहीं, अभी घर में है, नवाने में आया ऐसे घर में मैं। Fight hunger first initiative interventions, the farmers became aware of Mukhyamantri Kisan Khushhali Yojana, the agriculture department schemes, NREG, so that helped them further to mobilize equipments, technology from these agencies and departments. All this has been done with the farmers cooperative. Farmer clubs mobilize their resources together to procure seeds and also to develop procurement chain and supply chain that help them to access the markets. किसान क्लब में हम लोग जुटे हैं, मिलकर सब यहाँ मिलकर हम आलू लाए थे संगठन थ्रू से। उसमें सब फायदा है, उसमें ढेरी सुविधा है, पैसा कम पड़ा है और मेहनत हम लोग का वहाँ जाने आने का वो भी बचा। उस साथे लाए तो कम सब में उस चीज़ में लगा। तो हम लोग सब मेंबर मिल करके थोड़ा सा सोचे, इस पर विचार किए और अपना लोकल बीज जो अपना क्षेत्र में जो बीज है, हमारा पुराना बाप दादा का जो बीज था, धान का बीज है, मड़ुआ का बीज है, चोलिया बाजरा का बीज है, ये सब बीज थोड़ा यहाँ वहाँ से जहाँ भी कहीं मिला हम लोग उसको थोड़ा कलेक्शन करके एक यहाँ पर बीज बैंक बनाए। आपका कौन क्लास हुआ अभी? छठा। Ruby is now studying in class 6. Her elder brother, who had migrated to Kolkata, has returned to the village for doing agriculture.